हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर अरविंद, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका काउंसलर विश्वजीत टॉपर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 का लेक्चर 1, दैट इज अबाउट द सेट। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट से। तो हमारा फर्स्ट है कि व्हाट इज सेट। तो सेट क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि सेट हम किसे बोलते हैं। सेट की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है जो डिफाइंड होती है। अगर हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें कुछ न्यू टर्म्स मिलेंगी। पहले हम उन न्यू टर्म्स के बारे में जानते हैं और फिर देखते हैं उन न्यू टर्म्स को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे। चलो देखते हैं। सेट इज डिफाइंड एज collection of well-defined object of same kind. So this is the basic definition of the set. Okay, when we read these definitions, we comes to the 2 points. One is the well-defined and one is the same kind. So what is well-defined? So what type of the object we are going to select? Those objects are selected by using some rule. So here well-defined term is used for same rule. We are going to select the object on the basis of same rule. And the second term comes here, the same kind. Same kind refer to the same pattern. So here we use same pattern, means a number of the objects we are going to select, those objects will follow same rule and same pattern. For example, pack of cards. Okay, second example is set of natural number. And third one example is set of integers. Fourth one example is multiple of 2. Okay, fifth one example is set of even number, or we can say that positive even number. Okay, sixth, set of even number. There are some certain example about the set. Okay, we will discuss the pack of the card in detail so that you people have a good idea about what is the same rule and what is the same pattern. Okay, so these others are the some light examples. You people are familiar about it. What is a set of the natural number? You people know about the natural number. Natural number are defined by the letter n. Okay, and we know very well natural number start from the 1, 2, 3, then ends up to the infinity. Okay, we will use here 3 dot to represent that the sequence is in the continuity and it goes up to infinity. Okay, second is our set of integer. Integer generally we represent by z. So integer we know very well start from minus infinity, then goes up to -3, -2, -1, 0, and positive side 1, 2, 3, and so on up to infinity. Okay, and multiple of 2, okay, that is the 2n. Multiple of 2 को हम represent कर सकते हैं 2n से, and here condition क्या रखी, n belong to what? n belong to integer. Okay, and the fifth one is a set of positive even number. Okay, positive even numbers are represented by the letter 2n, and here n belong to what? N belong to
positive integer. Z positive. And last one is the set of even number. Set of even number are also represented by the same rule, like 2n, and here n belong to the integer. Okay, so here, listen, here multiple of 2 and set of even numbers, they are having the same relation. We are going to define by the same rule. Okay, so we are using here some rule like 2n, n belong to integer, n belong to positive integer, 2n, n belong to integer. Here the integer, they are defined by some rule. Here the natural number, they are defined by the some rule. Means we have defined each and everything under one cloud. We are going to use them by using their certain property. We can't use them about after their clouds, after their limit. If we are using them, it means we are not creating any set. So set is a defined only for well defined object. Means we have to first define the object, then we are going to collect them, then we are going to list them. Okay, so here the first one example, pack of the card. This is the one of the good examples, and you will see this example is helpful in creating the concept. So pack of cards, we know that number of pack of card is 52. These 52 cards we are going to select on the basis of some rule. So we are going to segregate these 52 cards. These 52 cards are divided into two colors. So one color is black. So on the basis of the color, let me write here 52. So these 52 cards are further divided into two types on the basis of color. One is black color represented by the B, another is red color represented by A. Okay, so each color have 26 number of card. So red have 26 number, black also have 26 number. Further, this 26 number in each color are going to divide into two subpart. So we know very well, in black we are having two type of card. One is कलब. कलब को हम चिड़ी भी बोलते हैं, कलब को हम चिड़ी भी बोलते हैं, लाइक चिड़ी टाइप के कुछ कार्ड होते हैं. ठीक है. सेकंड है स्पैड. स्पैड को हम हिंदी में हुक्म बोलते हैं, कि हमारे पास हुक्म के जो पत्ते होते हैं, हुक्म के जो कार्ड होते हैं, वो भी ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ठीक है. क्लब का देखें तो हमारे पास टोटल 13 कार्ड होते हैं. स्पैड में देखें तो हमारे पास टोटल 13 कार्ड होते हैं. 13 मिलके 26 बनाते हैं. इसी तरह से रेड कलर में भी हमारे पास दो सब कैटेगरीज होती हैं. ठीक है. एक सब कैटेगरी हमारे पास होती है डायमंड, जिसे हम ईट बोलते हैं. ईट का कार्ड बोलते हैं हिंदी में. डायमंड के भी हमारे पास 13 कार्ड होते हैं. और नेक्स्ट हमारे पास होता है हर्ट, जिसे हम बोलते हैं पान. ठीक है. तो पान के भी हमारे पास 13 कार्ड होते हैं. 13 टोटल. सो रेड कलर के भी हमारे पास हुए टोटल 26 कार्ड. सो 26 makes 52 cards. So here there is some rule. We are going to divide the 52 number of card into two different color of the card. Further, two different color of the card are divided by using the same rule. 13 in one category, 13 in another category. Here 13 in one category, 13 in another category. So what is behind the 13? In this 13, the first number in the card is the 1, and हम उसे इक्के के नाम से जानते हैं, जिसे हम एस बुलाते हैं. एस. ठीक है. उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस वी गोज अप टू 10. आफ्टर 10 वी आर हैविंग 11, देन 12, देन 13. 11 को हम जैक बुलाते हैं. जैक का मतलब होता है गुलाम. 12 पे हमारे पास क्वीन होती है, और 13 पर हमारे पास किंग होता है. ठीक है. किंग होता है. तो ये जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ द कार्ड था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कार्ड था,
जिसमें हमारे पास हर कलर के 4 नंबर्स अवेलेबल है, हर कलर के 4 सिमिलर नंबर अवेलेबल हैं। अगर आप एस देखेंगे तो 4 है, अगर आप जैक देखेंगे तो 4 है, अगर आप क्वीन देखेंगे या फिर किंग देखेंगे तो हमारे पास 4 है। सिमिलरली 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो मतलब हर सीक्वेंस नंबर का हमारे पास 4 कार्ड अवेलेबल है और ये 4 कार्ड जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। तो इस टाइप के कलेक्शंस को हम बोलते हैं सेट। द कलेक्शन ऑफ पैक ऑफ कार्ड इज नोन एज सेट। तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप अभी समझ गए हैं कि सेट किसे बोलते हैं। जब हमारे पास एक डिफाइंड कलेक्शन होता है, डिफाइंड कलेक्शन मैं बोलूं तो सपोज करो कि स्कूल में हमारे पास x नंबर ऑफ बॉयज हैं और एक क्लास में हमारे पास y नंबर ऑफ बॉयज हैं। तो y नंबर ऑफ बॉयज डिफाइंड है कि किस क्लास में, x नंबर ऑफ बॉयज डिफाइंड है, कैलकुलेटेड है। ठीक है, x नंबर ऑफ बॉयज कैसे बने, बिग फर्स्ट क्लास में दिस नंबर, सेकंड क्लास में दिस, फोर्थ में दिस, फिफ्थ में दिस, सिक्स्थ में दिस एंड अप टू 12th हमारे पास इतने नंबर ऑफ बॉयज है। मतलब वो डिफाइंड है, वो ना कम होंगे वो ना ज्यादा होंगे। वी हैव कैलकुलेटेड देम, वी हैव अरेंज्ड देम अकॉर्डिंग टू द क्लास, then we add them. So this is the set of boys in the class, sorry, set of boys in the school, and we are having a defined set of boys in class. Okay, and another example of the set like this set of odd number start from the 1, that is the 2 and -1. अगर हमारे पास एक सीक्वेंस आती है 2 and -1 और कंडीशन क्या रहती है, एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये कंडीशन जनरेट करती है हमारे पास सेट ऑफ द ऑड नंबर जो 1 से स्टार्ट होते, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। एक और हमारे पास होता सेट ऑफ ऑड नंबर जो स्टार्ट होते हैं 3 से। सो कंडीशन होती है 2n + 1 एंड हियर एंड बिलोंग टू द इंटीजर, सॉरी एंड बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, और ये स्टार्ट होते हैं 3, 5, 7 like this. Okay, so we are having a defined rule, we are having some pattern to define the collection of numbers, to define the collection of object. That collection of object is known as a set, known as a set. तो सेट को हम लिखते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें ये एक सेट है। ठीक है, तो सेट को डिफाइन करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं और उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसके एलिमेंट कहलाएंगे। तो उन एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। तो सेट को डिफाइन करते हैं और एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल लेटर से, ठीक है, और एलिमेंट को डिफाइन करेंगे हम नम लेटर से और स्मॉल लेटर से। ठीक है, कैपिटल लेटर की बात करूं A, B, C, D एंड सो ऑन। अगर मैं नम लेटर और स्मॉल लेटर की बात करूं A, B, C, D and like this. Okay, now we have to define a relation between set and an element. ओके, एलिमेंट सेट को रिलेट करता है या नहीं करता है, तो वो रिलेशन हम मैथमेटिक्स में कैसे शो करते हैं। वो रिलेशन शो करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसका नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज अ ग्रीक लेटर, एप्सिलॉन इज अ ग्रीक लेटर। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या बताता है कि हमारे पास एक एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द सेट ए। ठीक है, इसे कैसे रीड करेंगे मैथमेटिक्स में, हियर एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर हमने लिखा है लाइक दिस, बी बिलोंग्स टू बी, ओके, उसे बोलेंगे एलिमेंट B बिलोंग्स टू सेट B। अगर हमने लिखा है B बिलोंग्स टू D, तो हम बोलेंगे एलिमेंट B बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, सॉरी D, सेट D। ओके, तो ये था कि अगर एलिमेंट बिलोंग करता है, उस सेट का मेंबर है, उस सेट में वो काउंटेबल है, काउंट होता है। अगर वो उस सेट में काउंट नहीं होता तो हम कैसे लिखेंगे उसको। ठीक है, B इज नॉट एलिमेंट ऑफ A, तो हम जो एप्सिलॉन का लेटर उसको कट कर देते हैं, इसको लिखते हैं B
is not element of set A. This is the simple introduction about the set. Okay, how we are going to relate element of the set and the set, how we are going to define a set. Okay, so the next topic is how to represent a set. How to represent a set, that is very, very important. If you people know about the set very well, then you can convert the set from one form to another form. Okay, so there are two types by which we are going to define type of sets. The first, so the topic is how to write a set. How to write a set. Okay, so for writing a set we are using the two rules. The first rule is roster form और इसी को बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म. सेकंड जो टाइप है हमारे पास वो रूल फॉर्म और दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म. अब हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के बाद. रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म लिखेंगे जब भी हम, तो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं. उन एलिमेंट्स को हम एक रो में अरेंज करेंगे. ठीक है, और रो में अरेंज करने के बाद उनको सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कॉमास, और जितने एलिमेंट होंगे सबको ब्रेसेस में एनक्लोज करेंगे. तो इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है. ओके, roster form, it is the form in which all elements, means we have to write the elements, all elements of set written in a row which are separated by comma and enclosed them within braces means ब्रैकेट्स के अंदर उनको इंक्लूड कर देते. सपोज करो कि हमारे पास कोई सेट ए है. ओके, एक डिफाइंड सेट हमारे पास ए है, एंड ए जो सेट है उसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, एंड सो ऑन. अब ये जो एलिमेंट्स हैं इसके 1 2 3 4 5, इनको हमने कोमा से सेपरेट किया है और इनको ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज कर दिया है. सो दिस इज आवर रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स लिखते हैं. सेकंड फॉर्म हमारे पास है जो वो रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए. सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर और रूल फॉर्म में हम क्या करते हैं? वी पीपल आर गोइंग टू राइट द रूल and we assume that no element outside the bracket possess the same property. It means जो हमने यहाँ पर एलिमेंट लिखे हैं एक सेट में, यहाँ पर हम वहां पर उनकी प्रॉपर्टी लिखेंगे. ठीक है, हमें पूरे सेट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. कई बार क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं, तो हम उसको रूल से शो कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से शो कर सकते हैं. तो कैसे होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म? इन दिस फॉर्म, we will write property of all elements. Property of all elements and property of all element
विद इन ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे एंड, दैट इज इंपॉर्टेंट है, एंड वी अज्यूम दैट, और हम ये मान करके चलते हैं, नो एलिमेंट आउटसाइड द ब्रेसेस possess सेम प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक सेट ए है एंड सेट ए इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, सेट ए इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो दो हमने कॉलम लगाए हैं, ठीक है, ये कॉलम हमने जो लगाया इसको बोलते हैं सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, और ब्रेसेस क्लोज करते हैं। ठीक है, एक हमने सेट ए यहां पे लिखा है, एक सेट ए यहां पे लिखा है, ये दोनों ही नेचुरल नंबर है, बट हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट देम, दैट इज डिफरेंट। Here we have written a property and here we have written some elements. Okay, so this is the beauty of representation of the element within a set. When we are going to convert them, then we need to remember some basic fundamentals. Okay, so basic fundamental about the roster form, about the set builder form. Okay, एक और सेट लेते हैं हम, एक तो एग्जांपल साथ के साथ ले लेते हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं, सपोज वी आर हैविंग अनदर सेट B and B is collection of all y such that y plus 3 is equal to 17 and y plus 3 is equal to 17 and y belongs to natural number. Okay, so B is a collection of all y. So how many solution possible for this linear equation? This is a linear equation. How many solution possible? Those solution we are going to write in a B in the form of the set. Okay, in the form of set. When we are going to solve this equation, y plus 3 is equal to 17 and y is equal to 17 minus 3 is equal to 14. So B is a collection of only one element, that is 14. Okay, that is 14. So in this way we are going to solve the set and we are going to write its value. Okay, and there are another examples also. Suppose we are having a set C which is a collection of elements Z. Okay, and such that Z is solution of x square minus 5x minus 36 is equal to 0, और हम कंडीशन दे देते हैं, यहां पर कंडीशन क्या दे देते हैं, x belongs to integer and finally we are going to close the braces. तो C हमारे पास एक सेट है, ठीक है, C is a set such that C is a collection of all Z such that Z is a solution of this equation, and here in this equation x is a variable and this variable belongs to the integer. It can have positive as well as the negative value. तो इसके जो भी solutions आएंगे हम उसको एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे, और वो सेट की फॉर्म हमारी होगी कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो हम जब रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे तो हम एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जब हम बात करेंगे रूल और सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम सिर्फ रूल के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट्स हैं, वो नेसेसरी हैं, जब तक हम उनको नहीं फॉलो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक है बिल्कुल। सम
important सेट्स। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास है वाइड सेट। ठीक है, इसको हम एम्पटी सेट के नाम से भी जानते हैं, एम्पटी सेट के नाम से भी जानते हैं, और हम इसको बोलते हैं जीरो सेट। जीरो सेट, जीरो सेट। तो क्या होता है वाइड सेट, एम्पटी सेट, जीरो सेट? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। सपोज करो वी आर हैविंग ए सेट ए which do not contain any element, so this is our wide set। अगर कोई सेट इस फॉर्म में लिखा जाता है तो वो हमारा वाइड सेट, एम्पटी सेट होता है, और हम उसको जीरो सेट भी बोलते हैं। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें विदाउट ब्रेसेस तो सेट ए इज वाइड सेट, एम्पटी सेट और नल सेट और जीरो सेट, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर 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 देखो यहां पर ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं, वाइड सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन टर्मिनोलॉजी को आपको समझना हो। ठीक है, अगर हमारे सामने लिखा हुआ है ए इज अ सेट हु इज हैविंग एलिमेंट 5, ठीक है, एलिमेंट 5, तो क्या ये जीरो सेट है? क्या ये वाइड सेट है, नल सेट है, एम्पटी सेट है? नहीं, ये ना जीरो सेट है, ना नल सेट है, ना एम्पटी सेट है। ठीक है, ये इस कैटेगरी का सेट नहीं है। देखो जब हम अकेले ऐसे लिखते हैं तो 5 जीरो बन जाता है। 5 क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब क्या है? 5 अब एक एलिमेंट है। 5 क्या है? एक ग्रीक लेटर है जो एलिमेंट बन गया है सेट का। 5 क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंसंट्रेट करके लर्न करनी है। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है? ऐसे सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। अ सेट हैव ओनली वन एलिमेंट। ओके, एक सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है। तो जैसे हमने ऊपर लिखा था सेट ए इज इक्वल टू 5 को हमने ब्रेसिस में क्लोज कर दिया था, तो ये क्या है? इसका एक एलिमेंट है अभी सेट में, तो ये क्या हमारा सिंगलटन सेट है। अगर बी हमारे पास हो गया 2 तो वो भी हमारा क्या है? सिंगलटन सेट है। ठीक है, सी हमारे पास हो गया 5, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या हो गया? सिंगलटन सेट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए उस सेट में, वो सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिफाइंड सेट, सॉरी इनफाइनाइट सेट या फिर फाइनाइट सेट हम बात कर लेते हैं यहां पर। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट कैसा सेट होगा? ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे, मतलब डिफाइंड होंगे। ठीक है, a set whose number of elements are defined, और हम डिफाइंड को यहां समझ सकते हैं कैलकुलेटेबल, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो काउंटेबल रहेंगे। कैलकुलेटेबल की जगह अगर सुटेबल वर्ड हम यूज करेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं काउंटेबल। काउंटेबल रहेंगे। इट मीन्स ये कोई सेट है, अगर हम लिख रहे हैं उसमें 1 2 5 7 9, ओके, अभी इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट काउंटेबल है। इसी तरह से बी हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, सेट ऑफ एलिमेंट x such that x³ minus 7x plus 7x square plus 9x plus 36 is equal to 0, ठीक है, and x belongs to integer। तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा? ये भी हमारे पास एक डिफाइंड सेट रहेगा। x की वैल्यू डिफाइंड रहेंगी हमारे पास। ठीक है, तो सिर्फ हमें काउंटेबल होने चाहिए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे वो काउंटेबल हो तो फाइनाइट सेट होता है। नेक्स्ट सेट हमारे पास आ जाता है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट में क्या होता है? अ सेट हुज नंबर ऑफ एलिमेंट, अ सेट
whose number of element are नॉन काउंटेबल, नॉन और नॉन डिफाइंड और नॉन काउंटेबल रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही लिख देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल ए एक सेट है हमारे पास ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट अनकाउंटेबल हमारे पास होते हैं, इंफिनिटी तक हमारे पास होते हैं, तो वो टाइप का सेट हमारा इन्फिनाइट सेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेट हमारे पास है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक है, हम नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे होते हैं एक सेट में, वो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक न्यू टर्मिनोलॉजी हमारे पास है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, व्हाट इज कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं? सपोज करो कि हमारे पास एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1, 9, 100, 130 लाइक दिस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो यहां पर एन ए की वैल्यू कितनी है आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है 1 2 3 4, तो 4 सेट ए का क्या हो गया, 4 सेट ए का कार्डिनल नंबर है। हैंस 4 इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, इसी तरह से हम एक अनदर सेट लेते हैं, सेट बी हमारे पास है, सेट बी उसमें हमारे पास है ए ई आई ओ यू एक्स वाई जेड। ठीक है, हमें ये थोड़ी देखना कि हमारे पास एलिमेंट क्या, हमें सिर्फ उनके नंबर्स काउंट करने हैं। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 8, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 8, that is about the cardinal number. Okay, next is what is equivalent set? Equivalent set क्या होते हैं? ऐसे दो सेट, ठीक है, यहां दो सेट को हम कंपेयर करेंगे जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकेंड सेट, irrespective either element are same or different, we are going to count number of element in two set. Okay, so when number of elements in two sets are same, then those two sets are known as equivalent set. कैसे लिखेंगे इसको? सपोज करो कि हमारे पास सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, सेट बी हमारे पास है, सेट बी में एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो यहां पर भी ए में भी 5 है, सॉरी 5, और बी में भी हमारे पास कितने हैं 5। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बोथ आर हैविंग 5, दोनों में 5 एलिमेंट्स हैं, so it is equal to 5. So this implies that set A and set B are, set A
and set B are equivalent set. सेट ए और सेट बी क्या है? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ सेट हमारे पास थे। अब कुछ की पॉइंट मैं आपको लिखूंगा, वो की पॉइंट आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, की पॉइंट क्या होते हैं? जब भी हम कोई सेट बनाते हैं या हमें कोई सेट मिलता है तो उसको उसमें एलिमेंट्स को सेग्रीगेट करने में हमारी हेल्प करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं, उसको सोल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट की पॉइंट यहां पर आप मार्क कर लीजिएगा आपकी नोटबुक में, की पॉइंट। फर्स्ट की पॉइंट क्या है कि जो ऑर्डर है, ठीक है, एक सेट में जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो इमेटेरियलाइज है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, दैट इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हम इसकी केयर नहीं करते हैं। डोंट केयर की कंडीशन में इसको रखना। इसका मतलब क्या है? सपोज करो कि हमारे पास सेट ए है, सेट ए को हमने ऐसे लिखा 1 2 3 4। ठीक है, इसी सेट ए को मैं लिख सकता हूं सेट ए इज इक्वल टू 4 2 3 1। ओके, फाइनली वी आर हैविंग द 4 element in both, so both are our equivalent set, and number elements are also same. 1 is here, 1 is here, 2 is here, 2 is here, 3 is here, 3 is here, 4 is here, 4 is here. We are going to change order, so order never matter in case of the set. Okay, so second most important point जो हमारे पास है, repetition of elements is not allowed in set. सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेट है जिसमें वी हैव टू राइट ऑल लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल। स्कूल के सारे वर्ड लिखने, एक बार स्कूल की स्पेलिंग लिख लेते हैं हम, SCHOOL। तो अब यहां ध्यान से देखो, यहां पर ओ 2 बार रिपीट हो रहा है। जब हम एक सेट बनाएंगे, सपोज वी आर हैविंग ए सेट ए, ओके, दिस इज डिफरेंट, वी आर हैविंग ए सेट ए ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स, ओके, ऑल एलिमेंट एक्स, एंड सच दैट एक्स इज लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। यहां हमने एक प्रॉपर्टी लिख दी है, ठीक है, लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल। तो ये जो हमारा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इसको हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट की फॉर्म। अभी ए हमारे पास एक सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट, एक्स में कौन से होंगे? ये लेटर्स होंगे। ठीक है, तो हमें यहां पर सिंगल लेटर लिखना, SCHOL। ठीक है, SCHOL। तो हम यहां पर ओ को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कहीं दिए होते हैं किसी सेट में कोई 2 या 3 लेटर्स अपने आप को डबलिंग कर रहे हैं, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, या फिर वो मोर नंबर ऑफ टाइम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उनको अवॉइड करोगे। इस बात की आप केयर करें। तो ये था बेसिक, हमने थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन सेट के बारे में कलेक्ट की। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और आगे डिस्कस करेंगे।